Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. This video is for class 12th, subject is accountancy, chapter number 12, analysis of financial statements, part 4. In this module you shall learn common size statements where the financial figures are written in the form of percentage on some common basis, and percentage means statement is shown in percentage of the total. I mean to say each item shows its relation with the total in the percentage form. So as you made comparative statement of PL and balance sheet, likewise the same is done here in common size, for which you will have three formulae so that you are seeing on your screen. First, when it is an item of revenue or expenditure, then each item of revenue and expenditure upon net sales or revenue from operation, दोनों में से कोई एक, multiply 100. While making balance sheet, then for the item of asset size, each item of assets upon total of assets, multiply 100. And for the item of equity and liabilities, each item of equity and liability upon total of equity and liabilities, multiply 100. So these three formulas are very important if you need to solve common size statements for PL and BS, यानी statement of income and statement of financial position. So learn these formulae. बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल ये तीन फार्मूलों के बेस पे है. जब आप एक एग्जाम्पल देखोगे तो आपको लगेगा कि यस इट इज़ वेरी इजी. So what are the objectives, or you can say the utility of common size statements? First, it establishes relationship between various items of income statement and sales. It means this can be easily known that what revenue is being generated out of sales, and accordingly sales promotion can be done. Second, analysis can be done for changes in various items of income statement according to sales, whether the operating and selling and distribution expenses are increasing or they are decreasing. So that check can be done. Then comparison can be made with other firms in the similar business. Okay, when both the firms are having same sales but they are earning different rate of return of profit, so that can be compared by making common size statement, and from this statement trend of increase or decrease in income and expenses can be known. So day by day or year by year expenses are being increased or decreased, and it affects cost of production ultimately. So therefore a check and monitoring is required for this. Now third topic of this video is preparation of common size income statement. So फर्स्ट सबसे ज़रूरी बात जो तुम्हें याद रखना है पहली लाइन में लिखी है इसमें, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज सेल्स इज कंसीडर्ड इज एज 100. Okay, and every item of income statement is expressed in terms of percentage of sales. So three columns are there. In first column, particulars, where various items of income and expenses are stated. In second column, absolute amount of the previous year is written. In third column, amount of current year is written. In fourth column, percentage of item of previous year statement of the basis of sales and revenue from operation. And fifth column में current year
इनकम स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कैसे होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास जो तुमने इसके पहले पढ़ा था, रिलेटेड अमाउंट ऑफ एवरी आइटम अपॉन आइदर नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दो में से कोई एक चीज़ तुमको क्वेश्चन में दी रहेगी, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसका तुम प्रोफार्मा देख सकते हो, तुम्हारे उसमें दिया गया है सबसे ऊपर आपको जो इसका प्रोफार्मा या तुम जिसको फॉर्मेट कहते हो, तो सबसे ऊपर अपन लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम यानी कि PL फॉर द ईयर एंडेड वॉट एवर इज़ द डेट। नाउ यू सी द 5 कॉलम्स, पहला है पार्टिकुलर्स, दूसरा है एब्सोल्यूट अमाउंट्स मीन्स गिवन इन क्वेश्चन, देन देयर परसेंट फॉर्म। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी तुम 11 चैप्टर में कर चुके हो, और फिर अभी जब तुमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किए थे कंपेरेटिव वाले, तो उसमें भी ये चीज़ तुम कर चुके हो। एनीवे आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहला रहेगा ये, और ऑर्डर यही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, यानी मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग यू हैव टू फॉलो। सो फॉर दिस यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आपको रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको ये तो अकॉर्डिंगली यही होगा, हेड्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते, इसका ध्यान रखना। एंड बाय प्रैक्टिसिंग मीन्स यू विल लर्न, है ना। तो फर्स्ट होता है नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, थर्ड में टोटल रेवेन्यू जो फर्स्ट और सेकंड का टोटल होगा, फिर उसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं वो लिखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, फिर हम उनका टोटल कर लेंगे एक्सपेंस का, और जो टोटल आएगा उसको हम थर्ड वाले टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी कि हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर जो टैक्स लगेगा उसको माइनस करके फिर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा रहता है, तो उसका मतलब भी वही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या कभी कभी ऐसा लिखा रहता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐसा भी लिखा आ जाता है, या परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐसा दिया रहता है। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, इनके नाम बदल के आ सकते हैं। नाउ यू सी द इलस्ट्रेशन यू आर गिवन and you have to some informations are given and you have to make common size income statement of NEEL Limited and the year ended is 31st March 2018। तो सबसे पहले ये जो 3 कॉलम तुम्हें दिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ऐसे तुम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर देखकर। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9 और उसका ये सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 8 लाख 10 लाख है वो लिख लिया, फिर अदर इनकम्स लिख ली अपन ने 1 लाख 130 और उनका टोटल कर लिया फर्स्ट और सेकंड का। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहली बात अब जो भी हमने कही थी कि नेट सेल्स जो है उसका कंसिडरेशन 100% ही माना जाता है, तो दोनों में 100 आ गया, प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी। ठीक है, अब चेंज निकालना है, तो चेंज कैसे निकलेगा पहले 2017 का। तो 2017 में जो अदर इनकम है वो है 1 लाख, कितना है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो कितना है 8 लैक्स। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लैक्स मल्टीप्लाई 100 इट कम्स टू 12.5। सॉरी, when you find it for year 2018 then 1,30,000 upon revenue from operation and 10 lakh multiply 100 it comes 13%। अब तुमने टोटल कर लिया उन दोनों का, 8 + 1 9 आ गया 2017 में और 2018 में हो गया 1130। इनका परसेंटेज निकालेंगे हम, तो अगेन 9 लाख अपॉन 8 लैक्स यानी कि नेट सेल्स, हर बार नेट सेल्स ही अपॉन में आना है। तो 9 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई 100 इट कम्स 112.2 एंड फॉर 2018 जब परसेंट निकालेंगे तो वो आएगा
11,30,000 upon 10,000 upon 10 lakh multiply 100, that is 113%. फिर हमारा प्रोफार्मा कहता है एक्सपेंस के लिए, तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्वेश्चन में दी गई हैं दोनों की 240 एंड 320. देन EBE यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 120 एंड 150 वो लिख ली, और अदर एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिए गए हैं 40 एंड 60. इनका भी टोटल करेंगे एक्सपेंस का हम दोनों के. 2017 का टोटल करेंगे 4 लाख आएगा, 2018 को प्लस करेंगे 5,30,000 आया. ठीक है, अब इनका परसेंट निकालना है, तो परसेंट कैसे निकलेगा इसका? 2,40,000 अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई 100, अपॉन में नेट सेल्स ही रहेगा तो आ जाएगा 30%. देन 2018 में जब निकालेंगे हम 3,20,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, इट कम्स टू 32%. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट फंड 1,20,000 upon 8 lakh multiply 100, it comes to 15%. And for 2018 it is 1,50,000 upon 10 lakh multiply 100, that comes to 50% again. फिर अदर एक्सपेंस वाला देखेंगे 40,000 upon 8 lakhs multiply 100, तो वहाँ पर 50 लिखा हुआ, ये बुक में गलत है, उसको 5 कर लेना. ये 5% होगा, मतलब जो 15 के नीचे 50 लिखा है वो वाला, दैट इज़ 5%. एंड 2018 में 60 लाख अपॉन 60,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, दैट कम्स टू 6%. फिर आपने एक्सपेंस का टोटल किया और फिर आपने उनके परसेंटेज निकाले, तो 2017 में टोटल एक्सपेंस है 4 lakhs upon net sales या revenue from operation, that is 8 lakhs multiply 100, that comes to 50%. And for the 2018 year 5,30,000 upon 10 lakh multiply 100, that comes to 53%. Okay, so ये ऐसा अपन निकाल लेंगे. और यदि तुम्हें उनको ऐसे नहीं निकालना तो उनका तुम परसेंट का टोटल कर लो, बात वही है. परसेंट क्या टोटल कर सकते हो. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुम्हारे पास कितना आ रहा है, तुमने माइनस किया, 9 लाख में से 4 लाख माइनस हुए, यानी थर्ड वाले हेड में से तुमने टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. 9 लाख माइनस 4 लाख, तो 2017 में हुआ 5 लाख, और 2018 में 11,30,000 माइनस 5,30,000, दैट कम्स टू 6 लाख. अब फिर इनका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 5 लाख अपॉन 8 lakhs multiply 100, that is 62.5%. And for year 2018 6 lakh upon 10 lakh multiply 100, that comes to 60%. फिर इनकम टैक्स विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, व्हेन यू सी क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज़ 25% एंड 30%. तो 25% ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 5 लाख का है, तो 5 लाख का 25% निकालोगे कितना आएगा 1.25 लाख रुपया, यानी 1,25,000. और 6 लाख का 30% निकालना है तुम्हें, दैट कम्स टू 1,80,000. दोनों को माइनस कर देंगे, 5 लाख में से 1,25,000 माइनस किया, तुम्हारे पास आया 3,75,000. एंड in 2018 6 lakh minus 1,80,000, that comes to 4,20,000. अब फिर हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया था तुमको कि ईच आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 125 अपॉन 8 lakhs मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 15.63, है ना. देन नेक्स्ट 2018 में 1,80,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, दैट कम्स टू 18%.
फिर दोनों को माइनस कर देना तो तुम्हारे पास लास्ट वाला परसेंटेज फॉर्म आ जाएगा. अंडरस्टैंड? So this is how you have to do common size statement questions. So you keep doing, and any problem occurs, you can consult me in Zoom classes. Thank you.